Hi Shubham, welcome to the Anveshak podcast. I am Ravikant. Shubham is working on. Shubham is the founder of the Jaipur Artisans Elegance, and he has been building this startup since 1 year. His startup helps artisans sell their products online. Shubham, let's start from the beginning. What inspired you to build upon this idea? So I will start from the beginning. So last year only I was with one of my friend Rohit. So we were visiting a offline exhibition nearby our residence. It was around Jalmel. So we both were there. We were doing market research. I will just take this journey from last February 2025 when I started just as an export to sell stuff online with my sister, but due to some reasons and our value not aligned, and so we were unable to go ahead. Then after Rohit came into picture. Rohit is one of my close childhood friend. So and he is very hardworking, and he always he always motivate me to do things. And one of the great thing about him is that he whenever need any help, he is always there. So I will begin from there. First thing which inspired me is that there are a lot of underprivileged uh, artisans, or what we can say skilled workers, who make good stuff. They have, but the problem they are facing with is of visibility, market access, branding. So I thought that initially I thought that only I should sell this online, either on marketplace like Etsy, Amazon Global. Right. So I was just exploring. Then after I discussed with a lot of other founders, I studied the supply chain from my end through government portal like IBF, which gives you government data, Indian Brand Equity Foundation. So just to give a brief idea to audience, IBF, just if you want to do any start any market research, so IBF is government portal where you can go, you can see the market data points of any sector, be it e-commerce, handicrafts, or so. First thing which inspired me is that they are making good products and they're dependent on middlemen. This is first thing. And second thing I would like to add here is that their next generation don't want to involve in this thing, because of which what will happen in future, this entire artisan craftsmanship will go into extinct mode. Means their next generation don't want to involve because they want to educate, they want to take education, because nobody wants to come in underprivileged work. So I started from there, and I was always a tech enthusiast. I last year only I make MVP using tech product, and but I was unable to figure out where to apply so that I can get the right ecosystem. Then after I explored the iStart Rajasthan through one of my friend. So she was also here, but I asked from various people here. Then I applied here. Or initially as an entrepreneur, I was doing overthinking. I was just whether I should do it now. I used to think that apply next time. Then a point came when my family also pressured. Now you should start. Then on 6th of October 2025, I took my first registration, and on 13th of October, I got company registered as a sole proprietorship. I don't do private limited because there was lot of compliance issue, because I was unable to manage capital. I was starting whatever funds I have, so I just have to start. And from the beginning in the college only, I always used to kind of something like Kurapati boy who used to play with technology. I built projects also in data science, and I always have love with technology. I want to build something of my own right from the beginning. I have this clarity, but I am unable to figure out one thing, that what should I build, because I was always long term kind of thing. So here what I start. This is what about me. So I graduated last year from tech background only. I did my bachelor's in IT
from Bharatiya Skill Development University. I reached out to my university professors also, if they are watching it, sir, that do help me to get into incubation, but due to some issue they tried their best, but they were unable to help me. जब आपने पहली बार लाइक आपका जब आपने स्टार्ट किया अपना स्टार्टअप पे बिल्ड करना, राइट? सो आपको क्या चैलेंजेस आए? मोस्टली जो चैलेंजेस आए थे वो ये था कि प्रोडक्ट्स क्या लॉन्च करें, क्योंकि ऑनलाइन में ये होता है कि मोस्टली लोग गट फीलिंग पे जाते हैं. मैं डे वन से डेटा ड्रिवन रहना चाहता था, और मैंने ऐसा नहीं मार्केट रिसर्च करी, बट होता क्या है कि जैसे व्हेन यू आर एंटरप्रेन्योर तो आपको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखती है, अपॉर्चुनिटी हर जगह तो मैंने उस टाइम पे सोच लिया था स्टार्टिंग से. मैं लास्ट ईयर एक एग्जीबिशन में था दिल्ली में, यशोभूमि में था, सितंबर में 25 ऑफ सितंबर 2025 विथ माय फ्रेंड ओली. वहां पर मैंने एक ट्रेंड देखा कि मोस्टली जो स्टॉल्स लगी हुई थी एग्जीबिशन में, उन्होंने जो अपनी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग करी है वो सस्टेनेबिलिटी के अराउंड है. सेकंड फैक्टर एक और था कि गवर्नमेंट का भी एक कंप्लायंस है, ESG. तो गवर्नमेंट इस चीज को सपोर्ट करी थी, मुझे वहां से आइडिया लगा. और जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन कि आपने पूछा कि मैंने शुरू कैसे करा, तो मोस्टली मेरा जो डेटा ड्रिवन था, कुछ गवर्नमेंट के पोर्टल थे, और DGFT के पोर्टल पे अगर आप जाओगे तो आपका पूरा डेटा बताता है प्रोडक्ट के HS कोड वाइज कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री में कितना मतलब जा रहा है बाहर. तो मैंने देखा कि जो ट्रेंड है वो इको फ्रेंडली और सस्टेनेबिलिटी के अराउंड है. बट मेरा शुरुआत से डे वन से ये था कि मुझे जो भी करूंगा वो स्केलेबल होगा, इनोवेटिव होगा. ये वाला मॉडल मैंने D2C में लॉन्च किया. अभी SKUs हमारे बैम्बू बेडशीट्स है, जूट ऑर्गेनाइजर्स है, देयर आर अदर 3 SKUs ऑल्सो. बट पॉइंट इज दैट मेरे को लगा इसमें कुछ नया हम इनोवेट नहीं कर रहे. फिर मैंने कुछ फाउंडर से बात करी. सो वन ऑफ माई फ्रेंड शुभम एंड अदर मेंटर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, कोई बोल रहा था आप एजेंट ई कॉमर्स इंटीग्रेट करो. समवन इज सेइंग कि ये मतलब इतना कुछ इनोवेशन नहीं है इसमें. मतलब मोस्टली इंडिया में जो फिलोसफी है कि आप अनटिल अनलेस आप कोई डीप टेक में या फिर कुछ ऐसा काफी R&D ओरिएंटेड बना रहे हो तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स भी उसी ऊपर. बट मेरा जो मेन कोर्स था कि यार अगर मैं ये चीज करता हूँ तो मेरे साथ में जो आर्टिसंस है, क्योंकि मैं एक इवेंट में था, मेरे माइंड में उस टाइम ये था कि यार मैं इनकी लाइफ इंप्रूव कर सकता हूँ. तो ये अक्टूबर की बात है, मैं सोच रहा था उस टाइम, पता नहीं कैसे डॉट्स कनेक्ट हुए. फिर मेरे एक फ्रेंड मिले एक इवेंट के अंदर जिनका नाम यश नटानी है. तो उनसे मैं एक फिकी के इवेंट में मिला. उन्होंने, मैंने अप्लाई कर रखा था 7 अक्टूबर 2025 को इसी के आई स्टार्ट में. जब मेरा कुछ एप्लीकेशन में इशू आ रहा था मैंने छोड़ भी दिया था प्रॉपर. फिर वो मिले, उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई करा, उन्होंने थोड़ा मोटिवेट करा, हेल्प करी. फिर मेरे एक और फ्रेंड है जो श्रेय गोस्वामी नाम है. तो ऐसे करके डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे, मुझे उस टाइम समझ में नहीं आ रहा था. फिर मैंने शुरू करा. थोड़े मेरा चैलेंजेस ये आए कि हमारा पहला जो था MVP, वो उसका मैंने थोड़ा मतलब इतना मैं फोकस, मतलब उस चीज पे मैंने फोकस नहीं करा, थोड़ा लाइटली ली. तो वो पहला जो हमारा सोर्स कोड था वो हमारे डेवलपर के द्वारा चला गया था. फिर उसके बाद में आई मेट विथ यू, सो यू हेल्प मी अलॉट. सो I would like to thanks Ravikant also because he is really helpful and generous person. Not he is inviting me as a host, but genuinely he is really honest and supportive person. सो जब आपने लाइक आपने बताया कि जैसे आपको क्या क्या हुआ है, आपने ये अलग अलग पोर्टल्स में जाके एंड आपने देखा डेटा कि क्या किन किन प्रोडक्ट्स में बिल्ड कर सकते हैं. सो फिर आपने क्या किया डिसाइड कि लाइक कि आपने पहले प्रोडक्ट फाइनलाइज किया या फिर आपने पहले आर्टिस्ट को ऑनबोर्ड किया, लाइक नेक्स्ट आपने क्या किया?
नेक्स्ट मैं एग्जीबिशन में गया था अभी रिसेंटली अप्रैल में, तो उसी में मैंने कुछ आर्टिसन से वहाँ भी देखा कि पहले तो मैं वैलिडेट कर रहा था कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कि नहीं, क्योंकि अगर प्रॉब्लम सही नहीं होगी तो उस पर टाइम, तो मैं एग्जीबिशन में था, कुछ मैंने कारपेट्स में मिला, तो उन्होंने मुझे यही बताया कि सर हम प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं, कारपेट्स के थे, ऐसे करके काफ़ी सारे ब्लू पोर्ट अलग अलग। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि यार प्रॉब्लम रियल है। उसके बाद में मैंने मैनुअली कुछ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है वहाँ भी रीच आउट किया उनको कि आप मुझे गवर्नमेंट का ये डेटा दो आर्टिसन, क्योंकि मैं मैनुअली कितने आर्टिसन के पास जाऊँ, वो फिजिबल नहीं। तो मैंने थर्ड अप्रोच के थ्रू ट्राई किया। तो अभी मेरा जो पहले D2C में था, बट अब थोड़ा पिवट किया है मैंने बिजनेस मॉडल। अब मैं मार्केट प्लेस बना रहा हूँ, उसमें होगा क्या कि हर एक आर्टिसन की एक आइडेंटिटी होगी और हर एक प्रोडक्ट का एक तरीके से पासपोर्ट होगा, मतलब उसके अंदर, और ट्रांसपेरेंसी होगी कि मान लो आप कोई बायर हो, आप कोई सोर्स कर रहे हो इंडिया से, आप प्रोक्योर कर रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, कई बार बायर्स के पास ट्रांसपेरेंसी नहीं होती कि प्रोडक्ट मान लो जेन्युइन है कि नहीं, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि जो मैं जहाँ से आता हूँ तो उस एरिया में मोस्टली एक्सपोर्ट होता है। तो राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आई यूज टू सी द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ आई एक्सपोर्ट्स। तो मुझे ये चीज तो समझ आई कि प्रॉब्लम तो है, चाहे इसको मतलब ये प्रॉब्लम रियल है। उसके बाद में मैं थोड़ा स्टडी करा इसके सप्लाई चेन को, अलग अलग बिजनेसेस को भी मैंने समझने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे बिग पिक्चर समझना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है, क्योंकि मार्केट प्लेस में क्या होता है, चिकन एंड एग प्रॉब्लम होती है कि आपको बायर साइड भी बनानी है, सप्लायर साइड भी बनानी है, और ये इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आपको एक तरफ तो बायर से कनेक्ट करना है। उसके लिए मैं लिंक्डइन से प्रोक्योरमेंट मैनेजर्स, सोर्सिंग मैनेजर्स, उनको रीच आउट करता था। और ऑफलाइन में मैं एग्जीबिशन में जा रहा था, अभी रिसेंटली मैं भारत टेक्स में गया था। और मैं इसमें काफ़ी, अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा है जिसको इंटर्नशिप के लिए, तो अभी मैं टीम बिल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैनुअली सारी सोर्सिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और लीड जनरेशन, सारी चीज़ें वन मैन आर्मी हूँ। तो उसमें क्या होता है, एक बर्नआउट का है, तो अभी मैं एक टीम का भी सोच रहा हूँ। और सेकेंडली फंड रेजिंग के लिए भी एंजल इन्वेस्टर से बात चल रही है, तो ही इज़ ए सप्लाई चेन लीडर, सो अगर वो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो इट विल बी ग्रेटफुल फॉर मी। सो लाइक आपने बोला कि यू आर लुकिंग फॉर टीममेट्स, राइट? सो अभी आप सब कुछ खुद से बिल्ड कर रहे हैं, एंड यू ऑल्सो मेंशन्ड कि आपने आई स्टार्ट में भी इंक्यूबेट कराया है, राइट? सो लाइक अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? लाइक क्या आपके पास कोई प्रोडक्ट्स हैं जो आप अभी करंटली कर रहे हैं सेल, या फिर अभी आप और मार्केट रिसर्च कर रहे हैं? अभी तो मेरा मेन ये है कि थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ऐड करना भूल गया, मैंने एक एक्चुअल में प्लानिंग में थोड़ा एज ए एंटरप्रेन्योर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है मार्केट रिसर्च में, क्योंकि मैं एग्जैक्ट परफेक्ट प्रोडक्ट ढूंढ रहा था कि आर्टिसंस का कौन सा करूँ और उसमें क्या इनोवेशन कर सकता हूँ। सेकंड थॉट मेरा ये भी आया कि प्रोडक्ट में मैं क्या इनोवेशन करूँ, तो उसकी वजह से क्या चीज़ों का थोड़ा डिले हो गया। मैंने कुछ एमवी प्रोडक्ट्स थे मेरे पास, एक्सेल शीट में डालता भी था, बट होता ये था कि यार ये तो ऑलरेडी काफी लोग कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योर का एक माइंड में रहता है कि तो मैं यूनिक मॉट क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग ये बोलते हैं आपका मॉट क्या है, कॉम्पिटिटर्स आपको, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स भी जयपुर में, जयपुर रक्स है, तो आप यूनिक क्या कर। तो अभी मैंने जो सोचा है कि अभी मैं हायरिंग भी कर रहा था, बट एक फंड्स का इशू आ रहा था, तो उसी के लिए मैं थोड़ा एंजल इन्वेस्टर को रीच आउट किया, मैं मीटिंग शेड्यूल कर रहा हूँ। और इस प्लेटफॉर्म के लिए क्योंकि डेवलपर हायर कर रहा था अभी दोबारा में, क्योंकि उनका भी कुछ फंड्स का है, हमें पास अभी फंड्स थे नहीं, बट मुझे ये प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है कैसे भी। तो मैं अपने एंड से ट्राई कर रहा हूँ कि लिंक्डइन पे कोई एंजल हो। पहले मैं वीसीस को कर रहा था, आइडिया नहीं था, मैं काफ़ी एंथुजियास्टिक हूँ, तो कुछ भी पता लगता है मैं उसको कर देता हूँ। थोड़ा फीडबैक लूप भी मिसिंग था क्योंकि मैं खुद से कर रहा था। सो आपने जैसे बताया कि आप लाइक पहले आप लाइक प्लानिंग में आपने काफ़ी टाइम बताया, एंड देन आप लाइक आप जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि किस चीज, मतलब स्टार्टअप के जर्नी पे कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए?
सो मेरा पहला एडवाइस तो ये रहेगा कि भाई जब भी आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है तो एक फिलॉसफी होती है कि डू इट नाउ, ये मतलब आपके ब्रेन में प्रिंट कर लो आप कि डू इट नाउ। क्योंकि कई बार क्या होता है, एंटरप्रेन्योर्स एक उसमें रहते हैं कि यार परफेक्ट आइडिया कुछ एग्जैक्ट मुझे मिल जाए, वो हो कभी मतलब होता नहीं। तो मैं पहले फोकस करूंगा कि इन्वेस्टर के पीछे, क्योंकि मैंने जो गलती करी मैं फंड रेजिंग डायरेक्ट करा था। मेरा जो फोकस रहेगा, एक तो आप अपनी मार्केट रिसर्च सबसे पहले करो, चाहे वो ग्राउंड पे हो ऑनलाइन हो, वो करेक्ट होनी चाहिए। सेकंड, जो आपका प्रोडक्ट है वो कस्टमर के अकॉर्डिंग अलाइन होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं जेफ बेजोस की फिलोसफी में विश्वास रखता हूँ, सो मैं आई यूज टू वॉच सम हिज वीडियो। सो कस्टमर ऑब्सेशन रहना चाहिए। कस्टमर अगर बोल रहा है कि मुझे इसकी नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग पिवट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं एक एग्जीबिशन में था। अब मैं कई बार क्या होता है कि बैम्बू प्रोडक्ट्स में मैं डील कर रहा था, तो जो भी आपके पास परचेज ऑर्डर आया उसको शुरू कर दो। मतलब ऐसा नहीं कि बड़ा परचेज ऑर्डर आए जब भी हम शुरू करें। और सेकेंडली, आप राइट लोगों से कनेक्ट करो। मेरी और एडवाइस कम, मतलब जितना हो सके कम लोगों से लो। करेक्ट, मतलब क्वालिटी में विश्वास रखो। और लास्ट ये रहूंगा कि जो भी हो आइडिया आ रहा है, तो अगर वो आपका मतलब भगवान अगर कोई भी आपका आइडिया दे रहा है तो बाई गॉड्स ग्रेस। तो मेरा यही मेनली रहेगा कि जो भी आइडिया आ रहा है भाई उसकी मार्केट रिसर्च करो, लिंक्डइन पे लोगों को रीच आउट करो। पीपल आर हैप्पी टू हेल्प यू। कई बार क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं कि यार हमारी हेल्प करो, आप पहला स्टेप लो। आई विल टेल यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस। आप अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, लोग आपके लिए खड़े हैं। मतलब पहला स्टेप आप ले लो, लोग सपोर्ट करेंगे अगर आप जेन्युइनली कुछ कर रहे हो तो। आपका कॉज सही है, आपके वैल्यू सही है। और तीसरा, आप जो भी करो उसका मतलब एक एथिकल काम करो। जो भी एथिक्स होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कर रहे हो। ये भी सजेशन दूंगा। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अच्छे इकोसिस्टम में जाओ। मेरे साथ ये था कि अगर आपको बैंगलोर में कुछ इकोसिस्टम मिल रहा है, इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स है, वाई कॉम्बिनेटर में, जैसे आइडिया स्टेज में भी वहां पर कई लोग अप्लाई करते हैं, तो वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई करो। ये मत सोचो कि आप रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि रिजेक्शन पार्ट है। मतलब यू हैव टू बिकम बिल्ड द थिक स्किन। मोटी चमड़ी बनाओ भाई। मैं ये कह रहा हूँ, ये मतलब मैंने भी कहीं सीखा था। बट अब मैं इस स्टेज में हूँ कि मैं रीच आउट कर रहा हूँ। आपको 100 लोगों को रीच आउट करोगे, 4 का तो आएगा। 4 लोग ही कन्वर्ट करेंगे, वो हेल्प कर देंगे। मेरे साथ भी ये था। मैंने इतने वीसीस को करा जर्मनी, अलग अलग मल्टीपल। कई लोगों ने रिजेक्ट करा कि नहीं है, बट कुछ लोग अच्छे भी होते जो सपोर्ट करते। तो मेरा ये रहेगा, आप मेरे से भी कनेक्ट हो सकते हो लिंक्डइन पे। अगर मैं आपसे कहीं भी हेल्प करूंगा तो आई एम ऑलवेज देयर। आई एम हैप्पी टू हेल्प। और मैं कई सारे फाउंडर्स को गाइड भी करता हूँ। तो मतलब आप जिस इंडस्ट्री में हैं, राइट, तो उसमें काफ़ी कंपटीशन भी है। सो आप कैसे अपने आप को एज मतलब आप क्या तो यूएसपी आपने सोचा है? ये कंपटीशन का मेरा एक थॉट प्रोसेस अलग है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, मैं रिसेंटली एक बुक रीड कर रहा था, तो 0 to 1। तो कंपटीशन का ये है कि आप जब बड़े प्लेयर्स जो है, जैसे बात करते हो कोई भी कंपटीशन, मेरा मानना है कोई भी कंपनी शुरू हुई है, बी इट गूगल, दे स्टार्टेड विथ ए स्मॉल मार्केट। वो नीश से शुरू करते हैं कि मान लो मुझे आज गूगल बनाया, तो मुझे पूरा सब कुछ कवर नहीं करना, छोटा सा मार्केट पकड़ना है। देयर इज ए सेइंग ऑल्सो, बी स्मॉल फिश इन ए बिग पॉन्ड, इट्स बेटर टू डू दैट। तो मेरा ये रहेगा, पहला मैंने जो सीखा है वो है कि आप नीश में मार्केट में बिल्ड करो। कंपटीशन हमेशा रहेगा। और मार्केट साइज जो होता है, मान लो मार्केट, वो कोई सिंगल बंदा कैप्चर नहीं कर सकता। मान लो जैसे मेरी जो इंडस्ट्री है उसका $43 बिलियन मार्केट। तो मार्केट में आप वैल्यू क्रिएट करो तो वो चीज हो जाएगी। कंपटीशन का मेरा ये है यहाँ पर कि आप जो भी कर रहे हो उसके नंबर्स क्लियर हो। कंपटीशन से कोई, क्योंकि कंपटीशन 10 साल बाद भी आज भी है और रहेगा वो हमेशा। आपको या तो कुछ आप यूएसपी लेके आओ, या फिर आपकी जो पोजिशनिंग है वो आप इसको ऐसे करो कि भाई मैं नीश में करूँ। जैसे मैं जो अभी कर रहा था इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स में कर रहा था। जैसे बैम्बू मैंने एक मटेरियल देखा, ऑर्गेनिक कॉटन। और मैं काफी ज्यादा मार्केट रिसर्च करता हूँ। मेरा मोस्टली इंटरेस्ट ये मार्केट एनालाइज करने, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग,
बिजनेस मॉडल को ब्रेक डाउन करने में। आप कोई बुक्स रिकमेंड करना चाहेंगे ऑडियंस को? मेरी फर्स्ट बुक रहेगी जो मैं अभी पर्सनली खुद भी कर रहा हूँ, 0 to 1। वो बेटर बुक है क्योंकि उसमें आपको कोई भी चीज 0 से 1 और कुछ इनोवेटिव करो। सेकंड, हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स, एंड थर्ड इज इनोवेटर्स डिलेमा। तो ये 3 बुक्स मैं पर्सनली करूंगा, इसमें से आप एक भी करते हो। और फोर्थ, एक और जो मैंने लास्ट ईयर रीड करी थी, द एल्मनाक ऑफ नवल रविकांत। So that book will open your mind about lot of things like leverage, wealth creation. So Thank you for your time, Shivam. thank you for having me. It's pleasure talking to you.